One I know is Jayesh Bhai Jodhar. Yes, that film, director and the writer of that film, I know them, and they approached me with that character. So working with Ranveer Singh excited me, and I was like, ये करना है मुझे. मतलब with the biggest of producers like Mahesh Bhatt, I had to let it go. Content मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि यहाँ मैं फिट नहीं हो रही हूँ और जिस चीज़ में आप अपने आप को देख नहीं पाते वो आप कभी कन्विंसिंगली नहीं कर पाओ. I got a very nice role in a television show and my director is telling me कि नम्रता आपका close-up हो रहा है और मेरे हाथ बाहर जा रहे हैं कैमरा से, मेरा face कहीं और जा रहा है, मैं किसी और एंगल में देख रही हूँ. Sometimes you love somebody so much, but for their betterment, you need to let go. Just told my mother that I'm packing my bags and I'm going to Mumbai. I want to do this. And she said yes. आज हमारे पॉडकास्ट पे एक ऐसे मेहमान हैं जो सच में एक पावर हाउस ऑफ टैलेंट है. थिएटर आर्टिस्ट जिन्होंने गुजराती नाटक के 100 से भी ज़्यादा शोज़ की है और अब उनका सफ़र ग्लोबल जा रहा है. हिंदी और गुजराती सीरियल्स के कई यादगार रोल्स किए और अब नाट्यशास्त्र और मास कम्युनिकेशन के मेंटोर के रूप में आने वाले जनरेशन को तैयार कर रहे हैं. उन्होंने कला को ना ही सिर्फ जिया है बल्कि आने वाले जनरेशन को भी उसे जीना सिखा रही है. लेट्स वेलकम नम्रता पाठक. Welcome Namrata on the show of Dreams on Wings. It's such a joy to have a guest speaker like you on our show. How do you feel on being this show? Thank you so much. I'm very, very honored to be here. Thank you. शुरू से start करते हैं. About background, like your mom, your dad, are they also into the same industry? No, actually none of my family members are professionally into theatre, but they all are artists in their own way. So yeah, my father, he plays veena. Then my Chotu Chacha, he was in Mandi House doing theatre in Delhi. Yeah, then my brothers, they are into dancing. So one of my brother was in कौन बनेगा करोड़पति. उसको गरबा प्राइज मिला था कंपटीशन में. तो वो अपनी मामा के साथ अमिताभ बच्चन के शो पे गए थे. And so there are a number of examples in my own family. They all are artists, but none of them has stepped into the professional world. And मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बनूंगी एक्ट्रेस, पर मैं बन गई. So you took the first step? Yes, I did. So I think that art है वो आपके जीन्स में ही फ्लो करता है. Yes, absolutely. That's right. You said you took the first step. कितना डिफिकल्ट होता है वो फर्स्ट स्टेप. आपके फैमिली पूरा आर्ट बैकग्राउंड से है, बट टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, इनटू दिस प्रोफेशनल, हाउ वाज द मोमेंट व्हेन यू सेड कि मुझे ये करना है? कैसा सपोर्ट था एंड हाउ वाज योर डिसीजन, लाइक कैसा रहता है? बिकॉज कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, उतना करेज भी चाहिए. हाउ वाज इट फॉर यू व्हेन यू कम फॉर द फर्स्ट टाइम? एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस. आई वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट. सो आई हैव अ फैमिली ऑफ जर्नलिस्ट. मेरे बड़े मामा वो जर्नलिस्ट है, मेरे नानू जर्नलिस्ट थे, तो मुझे ऐसा एस्पायरिंग जर्नलिस्ट बनने का शौक था. पर I went into performing arts, bachelor's of performing arts, and I completed my grad over there, specialization in dramatics. And उसके बाद से the offers kept coming in, but I wanted to finish my studies first. तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर graduation हो गया. उसके बाद I was chilling at home and one fine day a producer called me from Mumbai and he's like, "I got a recommendation from your seniors from college and I want to do..." Producer from a film industry or Gujarati industry? No, Gujarati industry. Gujarati theatre industry. He called me up and he said that I want to work with you in my new play and would you like to come here? And without giving a second thought, I said, yeah, packing my bags and coming. And my family is super supportive. I cannot imagine that Indian family can be so supportive when it comes to a girl child. But I just told my mother that I'm packing my bags and I'm going to Mumbai. I want to do this. And she said yes. So you came alone to Mumbai? Yes. That one phone call, I think that changed everything. Yeah, it did. You said you never wanted to become you never wanted to take into this industry, wanted to become a journalist. वो क्या एक मोमेंट था या वो क्या इंसिडेंट था जहाँ पे आपको लगा कि नहीं अभी मुझे यहाँ पे ये करना है और जर्नलिस्ट नहीं बनना? एक्चुअली बहुत ऑर्गेनिक हो गया ये सब, यू नो. सो व्हेन आई केम टू मुंबई, आई थिंक आई केम टू मुंबई in 2008. Before that I was doing lot of competitions and I was winning prizes as best actress and all that, but I never thought कि professionally करते हैं. और जब आया professional तो
मैंने ले लिया और वो होता गया अपने आप ही। तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई, मुझे कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि दिस इज टफ एंड दिस इज नॉट माई गेम एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, एंड इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली. So then there was no moment or there was no space to look back and think कि मुझे वो करना था. तो वो जर्नलिज्म साइड पे रह गया, मास कम्युनिकेशन साइड पे रह गया, वो सब साइड पे रह गया. God's plan. Absolutely. With me it's always been like that. Correct. So you have been अपने थिएटर में भी परफॉर्म किया, दैट इज ऑन स्टेज. यू हैव बीन इन, यू हैव प्लेड लव्ड रोल्स इन योर गुजराती एंड हिंदी सीरियल्स, एंड वो होता है बिहाइंड द कैमरा. एंड यू हैव ऑल्सो बीन अ मेंटर. तीनों भी डिफरेंट रोल है, बट तीनों में एक अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द गोल्डन मंत्र फॉर कम्युनिकेशन? Honesty. I think if you're honest in your communication, वो flawless हो जाता है without any flaws. But when you're thinking too much, when you're trying to be something or someone which you're not, then the problem arises. Then the communication always fumbles because your heart and mind is not in the sync. So in theater, that is the golden rule. Be who you really are. Be the character. You don't have to think. When your brain is not working, you'll always speak flawlessly. But when your brain steps in, that's when the problem happens. And then you will be like, there are a lot of questions in your mind, and you will be like, should I say this? Should I not say this? Is this politically incorrect or correct? Correct. So yeah, so when you're just being yourself, flawless conversation. That's the golden mantra. You have been a part of a Gujarati play that is now going global and have completed over 100 shows. How did you decide to take up that show? वो कैसे हुआ? So basically, my friends are making that show. The producers of that play, they are my friends. So they were making this, and they were telling me, "Okay, you should do this role." But I was not very, keen about it. I was not very excited about the project. But I tagged along because obviously friends hain. I wanted to show my support and all. And slowly and steadily, we tried to create something out of it. A very beautiful character which comes in and which acts like a catalyst. So it's not her story per se. It's a Dada Dadi story. But she's acting like a catalyst. So she's moving the story forward. So and with every character what happens, you somehow try to find yourself in that character. और कुछ तो ऐसा होता है जो आपको उस कैरेक्टर के साथ ऐसा दिखता है कि ये मेरे में है, मैं रिलेट कर पाती हूँ. हाँ, तो वो जो पूरा चंडी पाठ वाला सीक्वेंस था, वो जो पूरा स्पिरिचुअलिज्म जो थोड़ा सा उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया, आई एम वेरी मच लाइक दैट, वेरी वेरी मच सो. सो बेसिकली द राइटर, उन्होंने कुछ अलग श्लोक और कुछ अलग लिख के दिया था, और जब मैंने वो पढ़ा, वो चंडी पाठ है, तो मैंने उनको बोला कि ये मैं अपने हिसाब से कर लूँ. एंड इट वाज लाइक, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट? आई सेड या, आई विल डू इट. तो वो पूरा entire section I took it upon myself and I built it in like the way I wanted to do it. So then it becomes very exciting for an actor, because you get to do something which you really want to do. Creative freedom. Yeah, absolutely. That is very much necessary. And to your previous question, I'm just connecting the dots that theatre is the only medium which gives you creative freedom as an actor, because television and film, they both are director's medium. Yeah. So the camera sees what the director wants. Exactly. So the angle director decides how much you should say, how you should say, how much your eyebrows should lift. Correct. And if you give a whole monologue per se as a take, उसमें से कितना रहेगा वो भी डायरेक्टर का लुकआउट है, वो आपका लुकआउट नहीं है. तो आपको लगेगा कि ये चंक में मैंने बहुत बेस्ट किया था, पर डायरेक्टर को लगेगा मुझे नहीं चाहिए, तो वो काट देगा. तो वहाँ आपका क्रिएटिव फ्रीडम थोड़ा सा स्टाइफल हो जाता है, थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है. थिएटर में ऐसा नहीं होता. थिएटर में व्हेन यू स्टेप अप ऑन द स्टेज एज एन एक्टर, यू आर द किंग. सो आपने कभी ऐसा किया कि कभी स्क्रिप्ट कुछ और थी और आपने थिएटर में कुछ और किया, बट देन ऑडियंस लव्ड इट? Sometimes it happens because as an actors, theatre actors, we do improvise a lot. We gauge the audiences कि ये ऑडियंस में को इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, and we try to tweak a bit, not too much. You cannot go out of the script also, but around the script you can play and you can do a lot of improvisations. That's a lot of fun. We do that all the time. और फिर शो खत्म होने के बाद कभी राइटर ने कहा है कि oh no, never, because you're see that's the magic of it. If you're not enhancing it, then you shouldn't do it.
Like you should know that. बट वो ऑन द मोमेंट क्लिक होता है कि अभी मैं ये बोलने जा रही हूँ, मुझे थोड़ा ये बोलना चाहिए, बट तब तक तो लाइन आने का टाइम हो जाता है, तो ऑन द मोमेंट वो कैसे It works in the sync. Like your mind, your heart, everything works in tandem. So it is so infused together, no, that there is no gap, there is no delay of any moment or of any second. It just flows. So how long have you been in this industry? Like how many years? More than 20 years. I started working when I was just 7 or 8 years old. I was not doing it professionally, but So I was young. Yeah. So I was just doing these television shows as a child actor and yeah. Okay. So तब से कर रही हूँ मैं. तो मैं फिर इसलिए कह रही हूँ कि कैसा होता है ना, आपका सेकंड नेचर बन जाता है. हाँ. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा काम है, क्योंकि ये तो आप कर ही रहे हो. जैसे माँ बाप रोटी बनाते हैं, पापा ऑफिस में जाते हैं, तो आपको लगता है ये तो उनका काम है, वो तो करते ही हैं. बट एज यू ग्रो यू रियलाइज कि अच्छा ये पैशन और वर्क कब इन्फ्यूज हो गया टुगेदर, पता नहीं चला. You said you started with a child actor, so of course वो TV सीरियल्स उसमें रहा होगा. सो वहाँ के आपको जो ट्रेनिंग मिलती है या आपने वहाँ पे जो काम किया, नाउ टुडे व्हेन यू गो टू TV सीरियल्स एंड आप टुडे जब लीड रोल्स में काम कर रहे हैं, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन योरसेल्फ एंड इन द इंडस्ट्री ऑफ इट्स वर्किंग? इंडस्ट्री इज अपग्रेडेड वे टू मच, इन द वेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड AI आ गया है, VFX आ गया है, तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है. तो इफ़ यू एज एन एक्टर, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकलिटीज, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कैमराज, इफ़ यू आर नॉट अवेयर about what you need to bring on the table, then it's little difficult. So it's always a good advice to be sound about the technicalities. Right now you're shooting, right? If we are not aware about the angle we are sitting in or the shots or per se, it can go wrong in lot of ways. Correct, you will not catch my face or something like that. So being aware that this is basic I'm talking about. पर बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक्टिंग के लिए आते हैं और एक्टर्स बन जाते हैं, बट दे डोंट हैव द नॉलेज अबाउट इट. तो उनको सिखाया नहीं जाता, उनको मतलब डायरेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये पता होना ही चाहिए. एब्सोल्युटली, बिकॉज यू आर इन अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री, यू आर नॉट इनटू अ स्कूल और एक्टिंग स्कूल के लोग आपको पकड़ के सिखाएंगे. इतना वक्त तो बॉम्बे में किसी के पास नहीं है, राइट? सो डायरेक्टर्स ऑल्सो एक्सपेक्ट के आप पहले से थोड़ा सा तैयार होकर आओगे, पर जब वो नहीं होता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है. जैसे मैं आई थी, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 और 11. आई वॉज अ थिएटर आर्टिस्ट, राइट? सो आई हैड जीरो नॉलेज अबाउट कैमरा. ओके. जीरो नॉलेज. So हाँ, मतलब आते ही स्टार्टिंग में how can someone expect? So I got a very nice role in a television show and my director is telling me कि नम्रता आपका क्लोजअप हो रहा है और मेरे हाथ बाहर जा रहे हैं कैमरा से, मेरा फेस कहीं और जा रहा है, मैं किसी और एंगल में देख रही हूँ. और उन्होंने बहुत पेशेंटली मुझे वो सारी चीज़ें सिखाई थी. बट अब तब छोटे थे तो ऑफ कोर्स आपको I was very young and I was a theatre artist. I had zero knowledge about camera technicalities. So he told me what a two shot is, what a close up is, what is the wide angle and everything. He taught me everything from the scratch. And I'm very grateful to him. Correct. But after that I took it upon myself that I should learn this. Yeah. Because not every director will spare some time for you and will teach you. That is very rare. हर बार वो हाथ पकड़ के नहीं होता है. गुजराती मूवीज लवनी भवाई, चल जी मिलइए, छेल्लो दिवस, बचुनी प्रेम पड़ी एंड मैनी मोर, ये एक ट्रेंड देखने मिल रहा है कि धीरे धीरे उनकी जो एक ग्रोथ है गुजराती इंडस्ट्री की. हम जब टिकट लेने जाते हैं हमको ऑलमोस्ट हाउसफुल मिलता है, तो वी वेट फॉर द करेक्ट डे कि जब आए और हम उनको देखें. ये ट्रेंड एक देखने ऐसा मिलता है ना कि एक ग्रोथ, एक स्पार्क है और एक अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी देखने मिलता है. व्हाई डू यू थिंक इज सो मच ऑफ ग्रोथ अभी गुजराती मूवीज़ में अचानक से? इट इज़ नॉट अचानक. सी यू सी द रिजल्ट, यू सी द टिप ऑफ द आइसबर्ग. पर वो आइसबर्ग कैसे बना नीचे, वो बहुत साल लगे हैं उस चीज़ को होने में. तो मुझे याद है 2009 से अलग टाइप की फिल्में बनना शुरू हुआ, केवीते जयेश और ये सब ट्रेंड शुरू हुआ. उसके बाद स्लोली डायरेक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया गुजराती फिल्मों में और अलग अलग तरह का कंटेंट डिलीवर करना शुरू किया, जो पहले नहीं होता था. पहले बहुत लिमिटेड वे में कंटेंट होता था, वही आपको चनिया चोलिया, डांस है, वैसा सब देखने को मिलेगा. एंड सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मतलब लिमिटेड मतलब बोल सकते कि स्टोरी लाइन भी लिमिटेड था, क्योंकि अभी स्टोरी लाइन देखते तो बहुत डिफरेंट वे है. स्टोरी लाइन वाज नॉट लिमिटेड. व्हेन आई से लिमिटेड, इट used to cater a different kind of audience. Okay. It not used like the target audience was not urban mass culture. Okay. You understand what I'm saying?
क्योंकि ग्लोबल इम्पैक्ट इतना नहीं था। तो गुजरात की गांव की ही बात होती थी, वहाँ के ही जो लोग होते थे जो चन्या चोली पहन के डांस करेंगे, और उसमें भी उनका वैरायटी होता था बिकॉज भवनी भवाई और ऐसी सब बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत रिच हैं। तो रिच हेरिटेज से वो सारी फिल्में आती हैं, पर वो मेरे आपके जैसे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी। यू अंडरस्टैंड? सो वैसी ऑडियंस को केटर करने के लिए एक नया दौर शुरू हुआ केवी रीते जयेश के बाद, और उसके बाद से डायरेक्टर्स ने अलग अलग तरह की फिल्में बनाना शुरू किया जो अब ज़्यादा पीक पकड़ रहा है। इतना पीक पकड़ रहा है कि अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी उसका देख रही है, लाइक टेकिंग अ नोट ऑफ इट कि अच्छा ओके यहाँ पे अच्छी फिल्म बनी, सो वश की शैतान बन गई, है ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था कि हिंदी फिल्में गुजराती फिल्मों से फिल्म बना रही है, पहले सिर्फ साउथ इंडियन फिल्म से हिंदी फिल्में बनती थी। यस, बट अब वो गुजराती से भी हिंदी में आ रहा है। सो वो ग्रोथ है आपका, सो आप वो ग्रोथ देख रहे हो। और वो शुरू बहुत पहले से। वो कौन से ईयर में आई थी आपने जो मूवी बोली वो? आई थिंक इट केम इन 2008 or 9 and it took 2025 to see this. 100%, that is why I'm saying कि आप सक्सेस देख रहे हो, और उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितने लोग लगे हैं, कितने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने अपना क्रिएशन और अपना टाइम स्पेस एफर्ट दिया है, वो तो इट्स लाइक एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब जिस लेवल पे गुजराती थिएटर और इंडस्ट्री ओवरऑल डेवलप हो रही है ना, वो पहले इतना नहीं था। या Hindi films, one I know is Jayesh Bhai Jodhar. Yes, that happened in 2019. Yes, no, 2019. Sorry, 2019 that happened, and उसके बाद कोविड लग गया तो उसका रिलीज रुक गया, एंड उसके बाद 2021 में उसको रिलीज मिला, और फिर उसके बाद तब इतने थिएटर्स में लोग जाते भी नहीं थे। उसके बाद उसको OTT पे ज़्यादा सक्सेस मिला जयेश भाई जोधार को। Yeah. So how did that happen to you? Again, a few of my friends were making that film, director and the writer of that film, I know them. But the chance of working with Ranveer Singh excited me. And I was like, ये करना है मुझे, because I love him as an actor. What a fantastic actor he is. Intense, and every role is like, ये उसी के लिए बना है, वैसा। तो he shines in every role. Absolutely, because he's super natural. Correct. Very, very, very natural actor. So that was one thing which I really wanted to do, and I'm a huge fan of Ranveer Singh. So it's like, चलो ये कर लेते हैं, तो वो कर लिया, वैसे वो हो गया। So फिर कभी मन किया है या कभी कि अभी वापस, क्योंकि एक बार once you taste that कि एक बार बॉलीवुड मूवी में आ गए, अभी और भी चाहिए, और तो कभी ऐसा हुआ है कि अभी मैं सामने से एक बार? It always happens, but I'm telling you, you need a certain kind of drive and passion to do that, because you need to go out, you need to meet people, you need to introduce yourself, and you need to do a lot of other stuff. In my early career, I used to get a lot of offers, बट मेरा वो टेम्परामेंट मैच नहीं होता है, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ फिल्म एक्टर नो, यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परामेंट, विच आई पर से दैट you need to be okay with certain things. Like you will see lot of nudity in today's film, in web shows also. You will see a different kind of content which I'm not okay with. I don't know why, but see, there is no restriction from my family. But or yeah, anything. every person has their but own my preference. mindset, it doesn't click very right with me. मेरे से नहीं होता है, और वही मुझसे सास बहू वाली चीज़ें भी नहीं होती हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि ऐसा कौन करता है। तो वो मेरे लिए कंटेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि यहाँ मैं फिट नहीं हो रही हूँ, और जिस चीज़ में आप अपने आप को देख नहीं पाते वो आप कभी कन्विंसिंगली नहीं कर पाओगे। एंड यू कैन नॉट परफॉर्म वेल, अगर आपने Absolutely not. गए भी कि नहीं चलो करते हैं, बट यू कैन नॉट गिव योर बेस्ट ओवर देयर। Correct. And I tell you why also, because I have come from an understanding my cultural upbringing and the way I am, that has shaped a very different mindset. So I am not okay kissing someone. I'm not okay doing a certain kind of stuff. I'm not okay showing my skin. और ये सारे parameters के साथ अगर आप फिल्म और वेब सीरीज में जा रहे हो, तो lot of people are not okay with Correct. it, because they'll be like, you can't be putting terms and conditions when you're coming in doing the films. You understand? Because a lot of the hero and heroines are doing it. Correct. And it becomes it's like a normal thing now. But if people like me not okay with it, then it's like, this is not my personal boundaries. Yeah, like I don't want to do this, and then you lose lot of opportunities.
यू हैव टू लेट गो ऑफ इट. जो मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे वेब शोज, बहुत सारी हिंदी फिल्म्स, मतलब विद द बिगेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स लाइक महेश भट्ट, आई हैड टू लेट इट गो बिकॉज हाउ डिड यू फील बट देन इट फील्स ओके बिकॉज इट्स योर चॉइस. करेक्ट. सो वही कि वही फिर वो गिल्ट वाली फील नहीं आनी. Absolutely बिकॉज यू not. स्ट्रांग ऑन योर एथिक्स. मुझे zero regrets है, zero regrets because I always work on my terms. तभी मैं आर्टिस्ट बनी हूँ क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वरना तो मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती. आई वॉन्ट टू टेक माई ओन डिसीजन, लाइक ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, और ये मुझे ऐसे ही चाहिए. तो ये इंडस्ट्री में बीइंग अ वुमेन, इफ यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ चॉइसेस, इट्स वेरी बोल्ड, यू नो. इन टुडेज एज ऑल्सो, इन 2025, व्हेन आई से दिस, व्हेन आई मेक दिस स्टेटमेंट, इट्स वेरी बोल्ड. बट बी बोल्ड, बी ब्रेव, बी यू. यस, दैट्स द थिंग. सी, माय कप आल्सो सेज द सेम. सो कभी सोचा है कि हम खुद कभी कुछ कोई प्रोजेक्ट करना है, मतलब आपके जैसा आपने बोला है कि वी वांट द करेक्ट कंटेंट, बट उसके साथ साथ हमें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे न्यूडिटी या ये सब नहीं चाहिए, बट अगेन वी डोंट वांट वो पुराने ज़माने वाला कंटेंट. वी वांट समथिंग फ्रेश, सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसा जो यंग ऑडियंस एज वेल एज फैमिली को भी साथ में एक अटेंशन ग्रैब करे. ऐसा कुछ कभी सोचा है कि ऐसा कुछ बनाते हैं कुछ? सिंस यू रियली हैव दैट आइडिया ऑफ मेकिंग वन. 100%. There are a lot of filmmakers who are actually doing that in Gujarati industry. For once, I will take the name of Vijay Baba. He is doing wonderfully well when it comes to bringing up the cultural heritage of Gujarati, Gujarati क्या कहते हैं background, you know. तो वो culture की बहुत सारी अच्छी कहानियाँ वो लेके आते हैं. In Hindi and in overall global perspective, we try to create, like I try to create storytelling in a way जो बहुत सारे लोगों को attract करे. So few years back I created a story on Amrita Pritam. If you know about Amrita Pritam, she was the famous poetess and Punjabi poetess she was, and she is very famous across the regions and across the different languages. So I try to create something like that. Recently I'm working on Kabir, who was a spiritual poet from 15th century. Correct. Kabir के दोहे that we know. Absolutely. उनके कितने सारे दोहे हैं जो आपको हिंदी फिल्मों में सुनने को मिलेंगे, हिंदी गानों में सुनने को मिलेंगे. So I'm working on that. I'm trying to create something. So when you say no to certain things, you need to create your own content then. Because then how as an artist you will express yourself. You know? Exactly. तो फिर अगर आप किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते हो या आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं जैसी आपको चाहिए, तो फिर आप वो खुद से क्रिएट करो. But how difficult it is, because already there are many people out there. It is not difficult. See, that's where you need to understand that every person on this earth has a different expression from what you are going to express. So रोते तो सब हैं, पर अलग अलग तरीके से रोते हैं. दिखा रहे कि करेक्ट. हंसेंगे भी सेम, पर हंसेंगे अलग तरीके से. कहानी हमेशा सेम ही होती है, लैला मजनू, हीर रांझा, पर दिखा कैसे रहे हो, दैट मैटर्स. इंटरेस्टिंग. You know? Yeah. So how you present it, how you're expressing it, that is all that matters. So you don't have to worry about कि 20,000 लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, करने दो. आप कैसे करते हो वो मैटर करता है. और आप क्या कह रहे हो, आपकी कहानी. Love that take. Yes, absolutely. So now that you are also mentoring future generations, you yourself have lived that art, you are living that art and you are making the most of it. अभी आप सिखा रहे हो आने वाली जनरेशन के उसका कैसे एक बेस्ट लेना है, एंड यू आर मेंटरिंग देम. एंड ऑल्सो उसके साथ एक कनेक्शन है कि अभी रिसेंटली नाट्य शास्त्र को एज अ 5th वेदा हमारे वर्ल्ड एंड ग्लोबल लेवल पे ये एक पोजीशन दी, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर इंडियंस. व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दैट, बिकॉज यू आर वेरी क्या कहते हैं, आप एकदम कोर से उसके साथ कनेक्टेड है. एब्सोल्युटली. सो मैंने सीखा है, हमारी स्टडीज़ में नाट्य शास्त्र आता है. सो वो 5th वेदा हमारी संस्कृति में तो उसको एक्सेप्टेंस है ही, नाट्य शास्त्र को एज अ 5th वेदा. पर इसको इस साल ग्लोबल रिकग्निशन मिला है 5th वेदा के तौर पे. सो ग्लोबली द एंटायर वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड दैट नाट्य शास्त्र इज द 5th वेदा, विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड ऑल द आर्टिस्ट आउट देयर, बिकॉज दैट ग्रंथ, दैट बुक, वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है. Master class of all kind of performances, master class of how you should live a life, the lifestyle itself. So I always tell my students, you know, that theatre or any kind of art or any kind of medium where you're expressing yourself is teaching you how to live a life.
Okay. Yeah, so that's a lifestyle का आपका एक skill है वो, you know. It is not that you, for example, you're a storyteller, right? So it is a lifestyle skill. It will impact on everything you do in your life, the way you communicate, the way you see your relationships, the way you see the world, you know. So नाट्य शास्त्र वो core है. अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इट इज़ वेरी मच स्पिरिचुअल. इट इज़ वेरी, दैट इज़ वाई इन वेस्टर्न कंट्रीज दे से आर्ट इज़ अ थेरेपी. सो आर्ट थेरेपी धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है. धीरे धीरे इंडिया में ऐसे सेंटर्स खुल रहे हैं जहाँ आर्ट इज़ यूज्ड एज अ थेरेपी. बट वेस्टर्न कंट्रीज में और कल्चर में वो कब से चल रहा है. सो इफ़ यू आर सिंगिंग इट इज़ काइंड ऑफ अ थेरेपी. इफ़ यू आर डांसिंग इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थेरेपी. इफ़ यू आर डांसिंग एंड सिंगिंग एंड पेंटिंग और व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स श्योर अ थेरेपी. एंड नाट्य शास्त्र सेज द सेम. वो कितने सालों पहले, मतलब भाई कितने युगों पहले लिखा गया है, उसका तो कोई हमारे पास ट्रेस ही नहीं है. पर सोचो कि कितना रिच है हमारा खुद का कल्चर. करेक्ट. यू सेड एक कैरेक्टर में आप अपने आप को देखते हैं और आपको लगता है कि ये करने जैसा है. जब आप कोई टीवी सीरियल कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, या थिएटर पे हो, या मेंटरिंग, आप अपने जो भी फील्ड में हो, जब कर्टन्स डाउन हो जाते हैं थिएटर में, जब कैमरा बंद हो जाते हैं, व्हेन यू आर अलोन, देन व्हाट नम्रता यू आर फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ऑल द रोल्स, डिफरेंट रोल्स यू आर प्लेइंग. How these roles affect you in your personal life? Oh, lovely question. So basically every role leaves an impact on you. Because see, क्या होता है ना, जब आप एक कैरेक्टर करते हैं तब आप अपने अंदर खोजते हैं उस कैरेक्टर को कि मैं इस कैरेक्टर से कैसे रिलेट करती हूँ. मान लो मैं एक साइकोपैथ का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो मेरे अंदर अगर मैंने वो ढूंढा नहीं, वो मैडनेस, वो पागलपन, वो क्रेजीनेस, वो इंटेंसिटी, तो मैं वो रोल को कभी जस्टिस नहीं कर पाऊँगी. एंड वी एज ह्यूमन बींग्स, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स बींग्स, सो जो हमें सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है कि आप नहीं कर सकते सोसाइटी में, वो आप एज एन एक्टर कर सकते हो. Because you can bring that face then. Absolutely. So you can bring that madness, you can be that crazy. Correct. एक जोकर का कैरेक्टर है, वो मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकती. Correct. पर मैं फिल्म में कर सकती हूँ. And people will appreciate that. Absolutely. So you get the chance to be that vulnerable, be that wild, be that raw, and bring it out. And that is a very beautiful process, because और कोई प्रोफेशन या मीडियम आपको ये करने की इजाज़त नहीं देता है. आपको लोग पागल बोल के पागल खाने में बंद कर देंगे. और अगर वही एक्टिंग में किया तो people will say क्या एक्टिंग की है. करेक्ट. सो यू रिलेट टू लॉट ऑफ पार्ट्स, लॉट ऑफ इनर पार्ट्स जो आपकी पर्सनालिटी के हैं, जो आप लोगों को नहीं दिखा सकते हो, उनसे आप काफ़ी कनेक्ट करते हो. और आपके साथ कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें रह जाती हैं जो आप सीखते हो, कुछ बुरी चीज़ें रह जाती हैं जो आपकी साइकी पे इम्पैक्ट करती हैं. बट देन यू ट्राई टू ओवरकम के दुनिया ऐसी है. मान लो जैसे इफ़ आई एम डूइंग अ कैरेक्टर जिसका रेप हो रहा है, तो वो जो रेप सीक्वेंसेस भी जो एक्टर्स करते हैं काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, वो आपकी साइकी को परेशान कर देता है. पर फिर आप ये एक्सेप्ट भी करते हो कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छी और बुरी दोनों तरीके से इम्पैक्ट होता है, बट यू ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. दैट्स इट. सो व्हाट्स वन कैरेक्टर यू थिंक आपको वो प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, या इट्स योर ड्रीम टू प्ले दैट कैरेक्टर? नॉट सो फार. अभी तक तो मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर मिला नहीं है. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट, बिकॉज आई एम अ वेरी हंग्री सोल व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. बट आई वुड लाइक टू मेंशन दिस वन फैक्ट दैट आई एम डूइंग दिस प्ले राइट नाउ, गमता मन गमता. उसमें एक एंड सीक्वेंस है. आई विल नॉट रिवील दैट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल वेटिंग टू वॉच दैट. बट उसमें एंड में एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें वी आर मोर्निंग समवन, we are mourning someone's death, and each time when I cry, each time when I play that, it reminds me that death is inevitable. Every single time, every single day we are stepping towards it, we are inching closer to that, and वो परफॉर्म करते करते आपका दिमाग जब आपको ये बात बोलता है ना, बड़ा ड्यूअल हो जाती है वो चीज़ आपके दिमाग में, कि आप वो कैरेक्टर जी भी रहे हो, आप वो चीज़ को ऑडियंस को दिखा भी रहे हो कि वो ग्रीफ है और ये है, और साथ में आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि हाँ ये एक दिन हमारे साथ भी होने वाला है. तो ये जब कैरेक्टर्स आप ऐसे इंटेंस प्ले करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आप पे छाप छोड़ के चले जाते हैं, वो आपको याद रह जाती है. सो व्हाट्स योर वन फेवरेट कैरेक्टर आपने अब तक जो भी प्ले किया है कि ये बहुत मज़ा आया करने में, या दिल से बनाया? Yeah, that happened in my college actually. That was not a professional play. I was just doing it as a student, and that was the first play I did as a
मतलब मेरी उम्र से बड़ा कैरेक्टर था वो, जो सिजोनिया नाम था उसका, कैलिगुला करके एक किंग हो गए थे रोम के, उसकी वाइफ थी सिजोनिया। सो वो पूरा प्ले बड़ा इंटेंस था और एल्बर्ट कैमस ने वो प्ले लिखा है और वो अस्तित्ववाद पे है पूरा, कि कैलिगुला इज सो रिच, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, उसके पास सब है। तो बोलते मेरे पास सब है, मुझे क्या चाहिए? तो बोलते मुझे चांद चाहिए। चांद कहाँ से आएगा, है ना? तो वो सबको बोलता है मुझे चांद ला के दो, कोई चांद नहीं ला सकता, तो वो सबको मारने लगता है, वो कत्लेआम पे आ जाता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड ही गोज क्रेजी। एंड सिजोनिया वॉचेज ऑल दिस बीइंग हिज वाइफ, एंड शी डिसाइड्स दैट ही नीड्स टू गो। आई लव हिम, आई एब्सोल्युटली लव हिम, बट ही नीड्स टू गो। सो उसको मार देती है कि तुझे जाना पड़ेगा इस दुनिया से। इंटेंस कैरेक्टर, very intense, and I was a child back then, I was merely 21 22 years old, and you don't understand these deep questions about existence and love and all that. Correct. But you still need to perform that. So वो मेरे साथ काफ़ी रह गया कि sometimes you love somebody so much, but for their betterment you need to let go. You need to let go, and you will see this theme in most of the love stories. Pick any picture and you will see this theme recurring. Correct. Yeah. You spoke about a नाटक जहाँ पे एंड सीक्वेंस में यू आर वेरी इमोशनल। ऑडियंस को बताने के लिए आई वॉज वेरी प्रिविलेज इनफ टू वॉच अ परफॉर्मेंस लाइव, एंड द अमाउंट ऑफ इमोशन शी शोज, आई थिंक ऑडियंस में इंक्लूडिंग मी, एवरीवन वाज इमोशनल इन दैट सीन, एंड आई डोंट थिंक वो कभी भी कोई वंस मोर बोलेगा, क्योंकि वो जब वो हुआ था तब ऑडियंस में पहले पीपल वर लाफिंग, बट वो आते आते वो सीन आते आते थोड़ी चीज़ें थोड़ा इंटेंस हो गया था। तब सब इतने इमोशनल थे कि अनएक्सपेक्टेड। आई विल नॉट स्पीक मोर अबाउट इट बिकॉज एज यू सेड मैनी पीपल ने अभी तक वो देखा नहीं है। आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट मच, बट वो इतना अनएक्सपेक्टेड था, एंड आई थिंक it just came out so good that the audience, that you all made the audience cry, you literally. And now that same natak is going global. Would you like to say something about it? Absolutely, it's a wonderful story. It's a social drama, and it's for every age group, so people really relate to all kind of emotions, and as a Indian society we go through lot of changes, because as an Indian society we are very much acceptable to all kind of cultures and all kind of मतलब हम लोग वेस्टर्न कल्चर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट टू स्टिक टू आवर रूट्स एंड टू स्टिक टू व्हाट वी ट्रूली आर, as human beings, because we are from a culture which is inclusive, not exclusive. एंड दैट इज़ समथिंग जो हमें सबसे अलग कर देता है। हम ये नहीं बोलते कि ये हमारा लैंड है, यहाँ मत आओ, ये हमारा कल्चर है, ये मत करो, ये हमारा धर्म है, इसे फॉलो मत करो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे प्लेस से हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि you accept what is the good parts of the Western cultures and Western society, but you do not forget your own roots, because जो अच्छा है, जो ऑलरेडी बेहतर है, उसको भूल के अगर हम डाउनग्रेड जाएं तो उसका मतलब नहीं है। So that is what our play is all about, and it's called गमता मन गमता, मतलब हमारे प्यारे और उससे भी ज़्यादा प्यारे। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर लवली ऑडियंस और जो भी देख रहे हैं, एंड डेफिनेटली उनको बहुत मज़ा आया होगा पॉडकास्ट देख के। I hope so. सो इफ़ कोई और आपके जैसा ये स्टेप लेना चाहता है कि आई वॉन्ट टू गो इन टू दिस फील्ड, फिर वो थिएटर में हो या कोई भी आर्ट फॉर्म में हो, व्हाट इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस यूड लाइक टू से? I just want to say that fail as much as you can. Do not be afraid of failure. Do not think for once कि सब कर रहे हैं मैं क्यों करूँ, because we as an individual, our individual expression चाहिए लोगों को, आवाज़ सुननी है लोगों को चाहिए। So please do it. And we don't, हमारे पेरेंट्स, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें फेलियर के लिए तैयार नहीं करता है, हमें डराता है कि फेल नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, इट्स लुक डाउन अपॉन कि अरे तुम फेल कैसे हो गए, पर अगर तुम फेल नहीं होगे तो तुमको कभी तुम्हारा बेस्ट पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो जितना ज़्यादा फेल हो सकते हो, और प्लीज़ डू नॉट स्टॉप डूइंग व्हाट यू लव द मोस्ट, जस्ट गो फॉर इट।
एंड नाउ सिंस यू सेड दिस, आई थिंक एक और ऐसा प्ले आना चाहिए गमता मन गमता के बाद कि फेलियर पे आप कुछ लेके आओ. Absolutely, I will definitely take this in mind. And And since I will bring it. मैं हाँ, करूँगी, मैं that's खुद what I was करूँगी. going to say कि अभी आप लेके आओ. Definitely. एंड वी विल बी, फिर हम वापस एक पॉडकास्ट करेंगे आपके वो प्ले के बाद. Sure, that would be so lovely. Thank you. Thank you so much Namrata for your time on our show, and we are really honored to have you. आज जो भी बातें हुई on the art and industry, I think ये बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं ना, मुझे आपका जो एक इंसाइट था कि गुजराती इंडस्ट्री को हम आज देख रहे हैं लेकिन वो डेवलप बहुत सालों से हुई है. It's such a big fact जो शायद हमारी ऑडियंस को नहीं पता है, and many such insights that you gave today through our podcast. So once again, thank you so much for being on our podcast. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you so much.